See, with all due respect to your esteem, intelligence, and wisdom, and your contribution as Australian to the people and society of India and the nation internationally, I really feel very honored to be with all of you as a filmmaker and to share our views from the fraternity on the film industry part of it, or the media and entertainment sector of India. You see, so I feel that this corona has been one of the biggest curse and also a lesson to change ourselves, a lesson to change in our perspectives of life, in perspectives of doing business, in perspective of looking at the people, the growth of the children, because this kind of crisis comes after 100 years, and where we are taught for a minute, oh man, think for a while what you have done to yourself and what you are doing. And I personally feel, as a theatre man who deals with the philosophy of life and the psychology of the people and society, that there is going to be a huge change in coming years, not after lockdown is over, but in visual growth of our living together, in our communication, in our lifestyles, in our thinking. I personally feel that it is going to have a big change. If we say one by one, let's talk about the communication between two people. Now, how are we communicating? How are we communicating today? मैं पहले भी रोटेरियंस क्लब के इवेंट्स में जाता रहा हूँ, कभी गोवा, कभी अमृतसर, कभी वहाँ. I used to see people in person. There were, I used to hear the clap. आज मुझे कोई क्लैप नहीं मिली. आज मुझे सीधा बात करना पड़ रहा है. तो एक ये चेंज है जो मुझे एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि मुझे बिना क्लैप के भी एक विजुअल टॉक करनी पड़ेगी हमें. आज हमारा पर्सनल टच जो है वो चेंज होने वाला है, कम्युनिकेशन का स्टाइल चेंज होने वाला है. एंड I'm surprised to see that, including my office and my whistling boots and other office of my all friends, they're all working. They're working through their Zoom conferences, they're working on their video calls, music. ऐसा नहीं है, काम रुका नहीं है. जिन्होंने करना है, जिन्होंने काम नहीं करना है, उनका काम रुक गया है. लेकिन जिन्होंने करना है वो अपना कर रहे हैं, उथल पुथल करके टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, अपने बच्चों से सीख रहे हैं. So the communication जो एक दूसरे के साथ होगा, today Prime Minister is communicating with the state ministers, with other people, sector of people, through this technology. Tomorrow is going to be a virtual technology. अभी हम लोगों ने थोड़े दिन पहले फिल्म बनाई थी whistling wood के स्टूडेंट्स के साथ कुंभ के ऊपर. So we have associated ourselves a VR कैमरा, वर्चुअल रियलिटी कैमरा, जिसमें आप 360 एंगल से मेरे पूरे रूम को देख सकते हैं. So we sent our student to with 20 cameras to shoot the whole Kumbh Mela for 14 days, and we edited the whole thing. And when you see that film for 5-10 minutes, you will feel that you are there in Kumbh and you are taking dubki and all that. So the technology has brought you here in the Kumbh Mela कि आपको जाने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ पानी आपको महसूस करना पड़ेगा. So things are going to be big change. तो जो हमारी आई कांटेक्ट था फैमिली के साथ, जो ऑफिस में हम लोगों के साथ था, अपने प्रोफेशनल कोलीग के साथ था, उसकी आदत आहिस्ता आहिस्ता बदलती जाएगी, जो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा सीनियर लोगों के लिए. लेकिन जूनियर यंगर जनरेशन है, उनका स्टाइल जो है बदलता चला जाएगा.
and finally you will find 2030, there is a huge change in the whole world as far as the communication is concerned. The physical schools, online education is going to have a big change. So आप घर बैठे ही सब कुछ, पहले हम लोग पोस्टल सर्विस से पोस्टल एजुकेशन लेते थे, आपको याद होगा, और अभी सब टेक्नोलॉजी ऐसी है कि अब एजुकेशन सिस्टम भी चेंज होगा, बिकॉज टुडे चिल्ड्रन हैव ए ह्यूज लाइब्रेरी ऑन देयर मोबाइल थ्रू गूगल. Whatever they want to know, with the one click they understand it. So knowledge has become an absolutely redundant. Now what they need is to be intelligence. They need to be wiser. They need to be developed with the wisdom and intelligence and spirituality, so that they can understand how to deal with the situation, how to get the best out of the things in my ecosystem, in my environments. Other change I can see is the business model. Lot of business models are going to change. पहले क्या होता था कि पैसा चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, कंपनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, सब लोग चाहिए और एक कंपनी बनती थी. अभी आने वाले दिशा में क्या होने वाला है कि कंपनियां भी बदलने वाली हैं अपने तरीके से. बहुत ऐसा होगा कि कुछ कंपनियां एक दूसरे से मिलने की जरूरत भी नहीं है. The whole financial structure, whole banking system, profession is कि जो आपका अप्रोच है, whether you're a doctor, whether you're a chartered accountant or a lawyer or a army man or a filmmaker. आप जरा बीच में अनाउंस कर दो. आवाज आ रही? ठीक है बाद में. हाँ आ रही है सर, आ रही है सर. Okay, thank you. So professional attitude, professional communication, professional thinking is going to change. Society की जो basic values हैं, they are going to come back. Let me tell you one thing. It is not going to be destroyed. Please, that's what I perceive as a positive thinker. Because people will respect people more in coming time. Because this corona time has given a lot of time to them to go for introspective. So now the educator, the teachers, the people who are the leaders are going to infuse their values and their philosophy to the younger generation, which is younger generation is going to receive it. That's what I feel. Second thing is that family health. We are all going to be close to our families. Our children are going to be close to us. That's what I feel very strongly. Our languages are going to be more polished. We are going to connect ourselves with the more of our ancestors and the Sanskriti and Shastras, the Purani values and Vedas. We are going to connect. I perceive one thing, that 2050, children will be speaking Sanskrit. How Sanskrit? Then English. Because अभी तक ये था कि जब इंग्लिश बोलने वाला आदमी है वो बड़ा इंटेलिजेंट होता है. हम यही समझते थे कि जो इंग्लिश बोलता है उसको बहुत समझ है. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंग्लिश फैशन में करते 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 ऐसा हो जाएगा कि कल ड्राइवर को भी इंग्लिश आएगी, कॉमन मैन को भी इंग्लिश आएगी, उसके हाथ में भी मोबाइल है, उसके हाथ में भी गूगल है, उसके हाथ में भी कम्युनिकेशन है. So finally, the power of Sanskrit will be in fashion in 2040. The person who speaks in Sanskrit is going to be an intelligent and a more Vidwan man and a Gyani man for the society. This is what I feel very strongly. Why? Because we have been born with Sanskrit, whether it is in Mahakavya, whether it's in drama, whether it's in poetry, whether it's in mantras, whether in pujas, त्योहार. आप सब लोगों को मंत्र मालूम है. हम संस्कृत में ही शादी करते हैं, लेकिन संस्कृत का मतलब नहीं समझते हैं. बस हो रही है एक साउंड जो है हमारे, उसमें एक अपना है उसके साथ. इसीलिए मैं समझता हूं कि ये होगा. बाकी रहा एंटरटेनमेंट, जो हमारा
सेक्टर है, वो भी बहुत चेंज होने वाला है. Entertainment is going to be all around you. There will be very different venues. पहले हमारे जमाने में सिर्फ सिनेमा होता था एंटरटेनमेंट के लिए, या तो थिएटर जाओ, फिर स्टेज शो जाओ, फिर टेलीविजन आया, फिर टेलीविजन के बाद नाउ द नेटफ्लिक्स, नाउ OTT, नाउ वेब सीरीज, नाउ on your phone everything is available. Entertainment is going to be a big vast thing, and there is going to be all kind of emotions in it. There will be drama, there will be comedies, there will be snob, there will be TikTok. Today the TikTok is an entertainment for the youngsters because their time span is not there. So we may not like TikTok, but how the children are glued to a TikTok. Just 10 seconds or 20 seconds you create a play, you create a one pun and entertain people. It's going to change a in a huge way, I think. Second thing which I should talk about, the cinema. I'm sure that you're waiting for that. Cinema today, tomorrow, and yesterday. Cinema has always been the reflection of our society's social values, progression and regression. Cinema is always a mirror of people of that time. The films were made in 1940s, were different than 60s, then 80s, then 2000 and 2020 in 5 different sectors. You see one film of 1940, where the Pati was Parmeshwar and Patni was Dharam Patni. Who calls today Dharam Patni and Pati Parmeshwar? Raise a hand. At least I'm not going to raise my hand. Where is Pati Parmeshwar? No, we are partners today. We are friends today. जब फ्रेंड्स बन गए तो पति परमेश्वर का क्या सवाल है, फिर धर्म पत्नी का क्या सवाल है? सो सिनेमा में 1940 में पति परमेश्वर था. 60s के अंदर हमें सिर्फ आंखें मिलती थी तो उसके बाद शादी हो जाती थी. हाथ मिलते थे, 2 फूल खिलते थे तो ऑडियंस समझती थी कि अब शादी हो गई. फिर 80s में आया कि जब तक बारिश में जिस्म नहीं मिलेंगे तब तक शादी नहीं हो सकती. फिर 2000 में आया कि कोई भी दोस्त अलग होता है और माशूक अलग होती है और बीवी अलग होती है. ये 3 कैटेगरी में दोस्ती शुरू हो गई कि तू मेरी दोस्त है, तू मेरी बीवी है और तू मेरी सिर्फ. सिनेमा में कितना फर्क है. अब सिनेमा में जो किस लिए आया, क्योंकि लोगों में आया, जनरेशंस में आया. टुडे आज मैं बच्चियों को मिलता हूँ, लड़कियों से पूछता हूँ कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है, बोले नहीं वो मेरा बॉयफ्रेंड है लेकिन मैं शादी नहीं करने वाली. बॉयफ्रेंड है. मैंने बोला क्यों? बोली हस्बैंड मटेरियल इज डिफरेंट, बॉयफ्रेंड मटेरियल इज डिफरेंट. दिस इज व्हाट आई हियर टुडे. And I'm glad that this is changing because change is inevitable. That's the topic is. And we must accept the change. Change is extremely important. And if we accept the change with a smile, with a positivity and acceptance, you will see that you are joining them and you're enjoying it more. Otherwise, it will always disturb you. Why the change is this? ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? Debate होगा. फिर आपको अर्नब गोस्वामी परेशान करेगा. You see? टेलीविजन न्यूज परेशान करेंगे. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी ऑल मस्ट फील दैट चेंज इज ब्यूटीफुल. अच्छा ये भी होता है, हम सोचते अच्छा ये भी होता है. वाह 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 वाह. As I told you, today my younger daughter at 18 years old, she is my teacher, she is my friend. हम लोग डिस्कस करते हैं and she teaches me what the value means, what is the fabric of politics. She talks about the fabric of politics of yesterday and today. 18-year daughter, and I listen to him. I always find that you are much more intelligent than all of us. They know, they are very well versed. So we must make our children as good as friends. अगर हमको खुश रहना है और अपने स्किन और ये उम्र के बाद अगर हमको अच्छा जीना है, खुशी से जीना है, तो बच्चों से तो दोस्ती कर लीजिए. लालियत 5 वर्षानी 10 वर्षानी ताड़ियेत, 6 वर्षे प्राप्त हेतु मताचरेत. ये संस्कृत का बहुत बड़ा श्लोक है.
बच्चों के ऊपर, पालने के ऊपर। लालियत पंचवर्षानी 10 वर्षानी ताड़ियत षोडशे वर्षे प्राप्त हेतु मित्रवदा चरे, जिसके ऊपर मैंने एक फिल्म बनाई थी, उसका नाम था यादें। एक फादर is finding so difficult to be friends to his 3 daughters because his wife is no more, and it is very tough for him that how to be friend to them because he has never talked to them. So आने वाले टाइम में हमको सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। Third thing which I can contribute in your taste or style is the art of acting. आप सब एक्टर्स हैं, आपको पता है। जरा सोच के देखिए, एक्टर्स वो नहीं जो थिएटर में या सिनेमा में एक्टर्स होते हैं, हम सब एक्टर्स हैं, ओनली हम रियलाइज नहीं करते। आप कभी सुबह से लेके शाम तक अपना वीडियो करवाइए, एक बंदे को बोलिए कि इनविजिबल वीडियो रख दो मेरे पे, एंड यू सी कि आप किस तरह से अपने बॉस से बात करते हैं, आपका फेस कैसे होता है, फिर आप नौकर से कैसे बात करते हैं, फिर जिससे पैसा लेना हो उससे कैसे बात करते हैं, और जिसको पैसा देना हो उससे कैसे बात करते हैं। फिर आप जब पब्लिक स्पीच में जाते हैं तो कैसे बात करते हैं, और जब आप किचन में जाते हैं तो कैसे बात करते हैं। सो वी आर प्लेइंग 9-10 roles in a day, but we do not know. हम 8, 9, 10 अलग अलग रस में से गुजरते हैं। बट आपको एक सुन के खुशी होगी या हैरानगी होगी, जो भी है, वो ये कि अमेरिका में एक्टिंग स्कूल बहुत हैं, गली गली में वहां एक्टिंग स्कूल है। तो मैंने कहा कि ये इतने स्कूल क्यों? तो उसने कहा कि साहब इसमें सिर्फ एक्टर्स नहीं आते जो एक्टर बनने के लिए आते हैं, ये ऐसी एक्टिंग स्कूल के अंदर डॉक्टर्स भी आते हैं, लॉयर्स भी आते हैं, प्रोफेशनल भी एक्टिंग सीखने आते हैं। मैं बोला उनको क्यों, क्या जरूरत पड़ती है? देन ही टोल्ड मी द टीचर देयर कि दे कम हियर to learn acting because they want to improve their voice, their art of speech, their art of talking to each other, communication. They want to groom their personality, that it should attract my client, my patient, my lawyer as a client, or my speech in the court. I must have I should know where to modulate my voice, where to perform in dramatic or in subtle way. So I was very much pleased and shocked or surprised also that acting is so much a big art and craft which is necessary for all of you, everyone. Politicians क्या use करते हैं? Art of acting, art of speech. पावर अच्छा है, जिसका कन्विंसिंग पावर अच्छा है, जो झूठ को सच के तरीके से बोल सकता है, बिलीवेबिलिटी अच्छी है। सो दैट इज व्हाई इन बिजनेस मैन आल्सो वेयरएवर यू आर, आर्ट ऑफ एक्टिंग एंड क्राफ्ट ऑफ एक्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा आपको बहुत बहुत अभिनंदन सर, और मुझे अच्छा लगा आपसे बात करते। अब मैं चाहूंगा कि कुछ आप मुझसे पूछें और मैं कहूँ, क्योंकि ये तो मेरी वन साइड स्टोरी होगी। Sir, we welcome RI President Shekhar Mehta ji. Shekhar Mehta ji, we have unmuted yourself. Can please communicate with Subhash ji directly, sir. जी, हाँ शेखर जी। नमस्कार, नमस्कार सुभाष जी। It's absolutely a pleasure and a privilege to be on this Zoom meeting with you. मैंने वो हमारे घाई साहब को कहा कि भाई ऐसा है, मैं तो आज वही करूंगा जो सुभाष जी हमेशा किया करते हैं, एक कैमियो रोल में आऊंगा मैं यहाँ पर। वो एक झलक अपनी दिखा जाया करते थे, तो मैं भी एक दूसरी मीटिंग में ये बोल के आया हूँ कि कैमियो रोल में यहाँ पर आके आपसे 2 मिनट गुफ्तगू करके वापस चले जाना पड़ेगा मुझे। इट्स एब्सोल्युटली अ प्लेजर। वी हैव ग्रोन अप फ्रॉम स्कूल टाइम्स वाचिंग योर लवली फिल्म्स। वो आज भी नहीं भूलते हैं कितने कितने कलाकार आज। आई हैव बीन ग्रोइंग। प्लीज गो अहेड। Thank you so much, Shekhar ji. Wonderful. So, and let's go about the question answer if you would like to. शेखर जी, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए उनको। शेखर जी। जी। नहीं, there is no question that I have. I just would say we are an organization which is more involved in
ये सेवा के काम में लगे रहते हैं, एंड वी नाउ हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग holistic view of doing some service activities in India, whether it is water preservation, whether it is sanitation, health programs हैं, या disaster management है, या literacy के programs हैं वगैरह. So all of these programs, while we are working, we want more and more people to join us. People like you can act as a huge bridge for us to our connectivity with the entire world. आज with the entire community in India especially. फिल्म से ज्यादा इंडिया में कुछ भी पॉपुलर नहीं है. And it's one of the best mediums. I myself am a movie buff. मैं वीक में अगर 5-6 सिनेमा नहीं देखता हूँ तो मुझे तसल्ली नहीं होती है. मैं अपनी फ्लाइट्स कई बार इंटरनेशनल इस बेसिस पे चूज करता हूं कि इस एयरलाइन की तो मैंने सारी हिंदी फिल्में देख ली हैं, तो मुझे अब दूसरी एयरलाइन लेनी है. सो दैट्स हाउ क्रेजी आई एम अबाउट मूवीज, एंड आई सी द पावर. आई अंडरस्टैंड द पावर ऑफ फिल्म्स आल्सो. यू कैन कन्वे सो मच मैसेज. आप यूजिंग योर गुड ऑफिसर, यू आर वन ऑफ द सीनियर मोस्ट डायरेक्टर्स इन दैट एरिया, प्रोड्यूसर्स इन दैट एरिया, इन दिस फिल्म वर्ल्ड. आपकी बात कोई नहीं टालेगा. कमल सांग भी मेरा दोस्त यहाँ पर है, मेरा छोटा भाई, वो इस मैटर को आपसे वापस डिस्कस करेगा. सर, जो 5-10 फिल्म स्टार्स है ना, उनको आप हमारे हर एक प्रोग्राम का ब्रांड एम्बेसडर बनवाएं, और उनमें से एक के ब्रांड एम्बेसडर आप खुद बने. ये काम आप हमें करके दीजिए, तो आपको काम नहीं करना होगा. आपके जरिए ये रोटेरियंस इतना काम कर देंगे कि उसका आधा श्रेय आपको पहुंच जाएगा. That is one request I'll make to you. बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस काबिल समझते हैं कि हम ये कार्य कर सकते हैं. और हमेशा इच्छा शक्ति तो बहुत रहती है हम सब लोगों की. फिल्म इंडस्ट्री वाले ने, आपको पता है, किया भी है और कर भी रहे हैं. इसे जहाँ जिसका भी जब भी क्राइसिस आता है, चाहे कम्युनल हार्मनी का हो, नेशनल इश्यूज हो, प्रॉब्लम्स हो, फिजिकली नहीं जा पाते क्योंकि पब्लिक सेलिब्रिटीज होते हैं, पब्लिक फिगर होती है, तो उनका जाना बहुत मुश्किल हो जाता है. लेकिन क्योंकि हमारा ऑडियो विजुअल मीडियम है, तो उसके द्वारा जैसे टेलीविजन में प्रमोट करना, जैसे मैं खुद ही हमारे जो विस्लीवुड है उनके स्टूडेंट के साथ मैंने कितने वीडियो बनाए हैं, पोएट्री बनाई है, गाने बनाए हैं हम लोगों ने, ताकि हम लोग वहां पर सबको बांटते हैं, ताकि आप दिखा सकते हैं जो इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स हैं, कुछ स्टार्स के साथ हैं, कुछ वैसे कॉन्सेप्ट वाइज हैं. So that contribution, definitely I can do that. You see, I can send you all our good videos, which you can show to the various members and various section of society to be inspired with them. They are beautiful poems, beautiful songs, beautiful video music, audio music, and also some bites from the stars. I can get you. Sure, wonderful. That's exactly. That will be very nice. These bites can help a lot. अगर फॉर एग्जाम्पल अभी हेल्थ इश्यूज हैं या स्वच्छता के ऊपर में है, एनवायरनमेंट के ऊपर में है, इफ देयर आर मैसेजेस, बाइट्स फ्रॉम स्टार्स, पीपल लाइक यू एटसेट्रा, हु आर लार्जर देन लाइफ. आफ्टर ऑल फर्क इस बात का पड़ता है कि आपको हम बड़ी स्क्रीन पर देखते हैं, द इमेजेस आर लार्जर देन लाइफ. सो दीज इमेजेस leave an imprint in the minds of the people and the young children also who will see. So we have fortunately a network. जैसे हम 50,000 स्कूलों में हम जाते हैं, वहां पर अगर बच्चों को बचपन से ये समझाने लगे कि तुम्हें कुछ फेंकना नहीं है, रास्ते पे थूकना नहीं है, लाइन में खड़े रहना है, तुम्हें पानी को बचाना है, तुम्हें पेड़ को उगाना है, इन सारी चीजों को अगर हम बचपन में ही सिखाने लग जाए लोगों को, और वो बात अगर हम कहें, उससे बेहतर एक पब्लिक फिगर लाइक एक फिल्म स्टार कहता है तो इंप्रेशन ज्यादा पड़ जाता है. तो दिस इज द ओनली थिंग वी विल रिक्वेस्ट विथ यू. मैं आपके इसमें बिल्कुल सहायता कर सकता हूँ, और एक नागरिक होने के नाते मेरा फर्ज भी है, मेरा ड्यूटी भी है कि मुझे ये सब कंट्रीब्यूट करना चाहिए जो मेरे ही फॉर्मेट में या मेरे स्कोप में जाता है, इकोसिस्टम में. तो हम लोगों ने काफी फिल्में बनाई हैं. ग्रीन के ऊपर फिल्म बनाई है, ग्रीन इंडिया, एनवायरनमेंट के ऊपर फिल्म बनाई है हम लोगों ने, एनिमेशन फिल्म भी है, दूसरी फिल्म भी है, कुंभ के ऊपर फिल्म, हम जैसे मैंने आपको बताया, कुंभ मेला के ऊपर कई चीजों के ऊपर हम बना रहे हैं. अभी हमने 2 महीने पहले मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं. उस फिल्म का नाम है गांधी ए पर्सपेक्टिव. गांधी एक पर्सपेक्टिव. मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिल्ली वालों ने कहा कि 150th ईयर के अंदर सुभाष जी एक छोटी फिल्म हमको चाहिए.
तो मैंने उनको बना के दी, लेकिन मुझे ये था कि मैं इसका स्टोरी कैसे ढूंढूं। गांधी के ऊपर आधे घंटे में मैं हाउ कैन आई एक्सप्लेन गांधी, इट्स वेरी टफ। तो मैंने क्या किया, एक कहानी लिखी जिसमें कि एक यंगस्टर है, बच्चा है 15 साल का, और उसका बड़ा एक मामा है घर में, फैमिली में। तो गांधी जयंती के टाइम में उसको बोलता है तुम चलो, तुम्हारा गिटार का प्रोग्राम रखेंगे हम। वो कहता है आई डोंट लाइक गांधी। अब एक 15 साल का बच्चा कहता है कि आई डोंट लाइक गांधी, तो बहुत सवाल उठता है, बोला क्यों? फिर वो उसके कमरे में जाता है, उसको पूछता है कि क्यों पसंद नहीं करते? क्योंकि मैं तो पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ गांधी को। इसलिए नहीं, हमारे यंगस्टर में, स्कूल में, कॉलेज में बहुत से सवाल उठते हैं, गांधी ने ये नहीं किया, गांधी ने वो नहीं किया, गांधी ने ये नहीं किया। बोले ठीक है, तो मुझे 10 सवाल लिखो, मैं 10 सवालों का जवाब भेज देता हूँ, देखता हूँ कि बनता नहीं। फिर वो बड़े भयंकर सवाल पूछते हैं, पार्टीशन के बारे में पूछता है, भगत सिंह के बारे में पूछता है, किसी 55 करोड़ के बारे में पूछता है, बहुत से सवाल पूछता है और उसके जवाब देता है। और आखिर में ये बच्चा गांधी जयंती में जाता है और उसका फैन हो जाता है। ये एक आधे घंटे की फिल्म मैंने बनाई, जो मिनिस्ट्री में, आज आचार्य मिनिस्ट्री में भी उन लोगों ने पास की है, बहुत पसंद की है, पीएम साहब ने भी देखी है पिक्चर, और ये अल्टीमेटली स्कूल्स और कॉलेज में वो दिखाने वाले हैं। तो वो फिल्म भी मैं आपको भेज सकता हूँ, ताकि आप अलग अलग स्कूल्स को, अपने अपने स्कूल को, अपनी संस्थाओं को वो दिखा सकते हैं। क्योंकि ये तो कोरोना है, तो वो तो है ही, लेकिन पूरा 150th ईयर ऑफ गांधी जी का है, तो दैट आई विल डेफिनेटली सेंड यू दैट पिक्चर लिंक करके, तो आप उनको दिखा सकते हैं सबको, और उस पर बच्चों से डिस्कस कर सकते हैं। इट शुड बी फॉलोड बाय द इंटरेक्शन बिटवीन द फिल्म एंड देम, सो दैट विल आल्सो बिग कंट्रीब्यूशन फ्रॉम योर साइड एंड फ्रॉम आवर साइड आल्सो। तो जो भी हमारे पास वीडियो म्यूजिक हैं, जितने भी सोशल कॉजेस के हैं, और आपको भी कोई सोशल कॉज का लगे तो आप हमको सब्जेक्ट भेज सकते हैं, हम अपने स्टूडेंट्स को बोल के बना के भिजवा देंगे। उसी जैसे हेल्थ के बारे में, या कुछ सब्जेक्ट है जो हमने टच नहीं किए होंगे अभी, सीनियर होने के नाते आप, हम कर क्या सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं? आप भी तो कर रहे हैं, आप अपना समय निकालते हैं, परिवार छोड़ के, रोटेरियन कितना काम कर रहे हैं। ये कोई आपका धंधा नहीं है, ये आपका एक चैरिटेबल फिलैंथ्रोपिस्ट माइंड है जो सोसाइटी और नेशन के लिए सोचता है। तो मैं भी क्यों ना अगर आपका छोटा सा भाग बन सकूं, तो मैं अपने आपको भाग्यशाली समझूंगा। ये बात सही है, ये कोई पॉलिटिकल स्पीच नहीं है। सर, यहाँ पर ये जो लोग बैठे हैं, ये हैं 1.5 साल बाद ये सारे लीडर बनेंगे इंडिया के, और उस साल बाई चांस मैं रोटरी इंटरनेशनल का लीडर रहूंगा। इन सब का वादा है कि ये 1 साल में कम से कम 2000 करोड़ रुपए का काम करेंगे, सिर्फ सेवा का। तो सर, इस यज्ञ की आहुति में थोड़ी आहुति फिल्म इंडस्ट्री हो और उसके माध्यम आप बने, तो मजा आ जाएगा। मेरी सेवा जहां तक मुझसे हो सकेगा, क्योंकि स्टार्स जो होते हैं ना, स्टार्स, उसकी गारंटी तो लॉर्ड शिवा भी नहीं ले सकते। ये है वो लॉर्ड शिवा बोलते भैया, बाकी से कहते हैं ना, स्टार के साथ करोगे पता नहीं कब पैसा। दिल जीतना पड़ता है, दिल जीत लिया और उनको बात समझ में आएगी तो वो जरूर आते हैं, ये बात सही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल नहीं देते हैं सर, और कोई सवाल हो, बहुतों ने साथ दिया है, बहुत जुड़ते हैं कामों में, कभी हमने ना नहीं सुना, वेदर इट वाज मिस्टर बच्चन और वेदर इट वाज फरहान अख्तर, अभी रवीना टंडन वगैरह, देयर आर सो मेनी ऑफ देम हु हैव गिवन मैसेजेस फॉर आवर प्रोग्राम्स एंड वी आर थैंकफुल टू देम, वेरी नाइस ऑफ देम। अभी तो बाल के ऊपर है, और एक मूछ के साइज के ऊपर भी बन सकती है कि बड़ा साइज क्या होता है, छोटा साइज क्या होता है, उसके ऊपर भी फिल्म बन सकती है। बायोपिक बन रही है, इंस्पिरेशनल फिल्म बन रही है, बिल्कुल बिल्कुल, बड़े इश्यूज के ऊपर पिक्चर बन रही है, अलग अलग इश्यूज आ रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है, बहुत खूबसूरत बात है। हम अपने दायरे से बाहर निकल कर भी आ रहे हैं। जहां तक ये सवाल है कि हॉलीवुड और बॉलीवुड का, या उसमें एक बात रखी कि जो सिनेमा है वो अपनी सोसाइटी और देश और भूमि का प्रतिबिंब होता है, उसका रिफ्लेक्शन होता है। सत्यजीत रे दुनिया में ऑस्कर विनर हैं, हमारे बहुत बड़े फिल्म मेकर बंगाल के, लेकिन उन्होंने कभी हिंदी फिल्म बनाने की कोशिश नहीं की, ना हिंदी फिल्म में आने की कोशिश नहीं की। उनसे पूछा गया कि आप क्यों नहीं में आता है, नेशनल लैंग्वेज में फिल्म बनाते, तो उन्होंने कहा कि जो नेशनल लैंग्वेज वो मेरी लैंग्वेज नहीं है, मेरी लैंग्वेज बंगाली में है। मैं बंगाली के लोगों को जानता हूँ, यहाँ की बुढ़िया को, बच्चे और परिवार, जमीन, गलियों को जानता हूँ, मैं इन्हीं की फिल्म बना सकता हूँ। तो जो डायरेक्टर जो होता है, राइटर जो होता है, वो अपने जब देश की फिल्म बनाएगा, अपनी भूमि की, अपने कल्चर की, तो उसको ज्यादा मालूम पड़ेगा कि मेरा सिपाही, मेरा
पुलिस वाला, मेरा क्रिमिनल, मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार कैसे बात करते हैं। सो जब हम अपने देश की फिल्म बना के उधर भेजते हैं तो वहां पर भी एक सेक्शन है कॉल फॉरेन फिल्म्स, बेस्ट अवार्ड फॉर द बेस्ट पिक्चर इन द फॉरेन लैंग्वेजेस। उनके लिए फॉरेन लैंग्वेज है हम लोग। हमारी लगान पिक्चर वहां जीती, आपने देखा। तो जहां जब हम, लेकिन फिल्म हमको अपनी बनानी पड़ेगी क्योंकि हम इसी को जानते हैं। वो हॉलीवुड में फिल्म बनाने के लिए वो हॉलीवुड में पैदा होना पड़ेगा आपको, अमेरिका में आप पैदा होंगे। जैसे हमारे 2-3 डायरेक्टर भी हैं वहां पर जो कि इंडियन हैं, लेकिन वो बचपन से ही अमेरिका में रहे हैं, उसी सोसाइटी को देखा है, वो सोसाइटी को प्रेजेंट करें। तो इसमें कोई हताश होने की नहीं कि वो लोग हमें कहें, न वो हमारी भाषा जानते हैं, ना हमारी संस्कृति जानते हैं, ना हमारा बिहेवियर जानते हैं। तो एक गलत मैच हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सुभाष जी, I'll have to excuse myself. मेरे फादर के लिए डॉक्टर आ गए हैं. He's just come in. My father is ailing, so I'll just have to be with him. I will in fact not be able to go back also, but it's great. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और फिर मुलाकात होगी एक बार लॉकडाउन खत्म हो जाए तो कभी जरूर मिलेंगे. Thank you sir, thank you for joining. थैंक यू सर. सुभाष जी, आपके लिए अगला सवाल ऐसा है कि आपने इतनी पिक्चर, इतनी ब्लॉकबस्टर बनाई, उसमें से सबसे फेवरेट कौन सी और क्यों? एक माँ को पूछो कि तुम्हारा फेवरेट बच्चा कौन सा है, क्या जवाब देगी? वो रचना है आपकी, हर फिल्म आपकी रचना होती है, बराबर. फेवरेट नहीं हो। उसमें ये होता है कि चैलेंजिंग कौन है। जो चैलेंजिंग बच्चा होता है, जो बहुत नालायक है या चल नहीं सकता, उसको मैंने बनाया माँ ने, है। तो चैलेंजिंग बच्चे को के लिए वो ज्यादा ध्यान रखती है ना, और उसमें गर्व महसूस करती है, भले उसके 4 बच्चे आए। इसी तरह से चैलेंजिंग फिल्म पूछिए, फेवरेट फिल्म नहीं, फेवरेट तो सभी थी, चाहे वो फ्लॉप हुई या हिट हुई, डजंट मैटर। फेवरेट मेरी फिल्म थी कि जिसके पास मेरे पास कहानी नहीं थी और मैंने वो फिल्म बनानी शुरू कर दी। और वो फिल्म आज भी 20 साल के बाद भी, आज 18 साल और 20 साल के बच्चों को मोस्ट फेवरेट फिल्म वही है। और मैं बहुत हैरान हूँ, हमने कर्मा बनाई, राम लखन बनाई, सौदागर बनाई, खलनायक बनाई, लेकिन वो फिल्म का नाम है ताल। तो आप बच्चों को कभी पूछेंगे कि सुभाष के नाम से, तो बोलेंगे 2 फिल्में हम जानते हैं, कर्ज और ताल। तो मैं उनको पूछता हूँ कि ताल में क्यों, बोल के ताल हमने 10 बार देखी। तो यंगस्टर, इफ यंगस्टर फैन ऑफ सुभाष घई इज बिकॉज ऑफ ताल। फिर मैं ताल की तरफ जब जाता हूँ, सोचता हूँ, तो देखता हूँ कि वो बहुत बड़ी चैलेंजिंग फिल्म थी, क्योंकि मैंने बिना कहानी के, मुझे माइंड में आया कि मुझे एक म्यूजिकल फिल्म बनानी चाहिए और लड़की के ऊपर फिल्म बनानी चाहिए। मैंने कभी लव स्टोरी बनाई नहीं थी। लव स्टोरी परमानेंट फीचर होता है, लेकिन ह्यूमन लव स्टोरी थी मेरी मोस्टली। और विलन होते थे, अमरीश पुरी होते थे, एक्शन होता था, वायलेंस होती थी, रोमांस होता था। तो मैंने बोला बिना विलन के फिल्म बनानी है, बिना एक्शन के फिल्म बनानी है और म्यूजिकल फिल्म बनानी है। तो मैंने एक आइडिया, मैंने रहमान साइन किया हुआ था, A.R. रहमान को। वो नया उस वक्त हमारी हिंदी फिल्म में पहली बार मेरे साथ ही उसने साइन किया। तो मैंने उसको कहा, रहमान मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ तुम्हारा म्यूजिक सुन के, क्योंकि तुम मेरे साथ एक फिल्म बनाओ। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं फिल्म सोच रहा हूँ एक कहानी, लेकिन उसमें फिल्म का म्यूजिक जो है वो पंजाबी स्टाइल से है, और तुम हो तमिलियन, और तमिलियन तो हिंदी भी नहीं जानते तुम, तो उसको हिंदी भी नहीं आती थी उस टाइम पे। अब हिंदी नहीं आती और हिंदी सिनेमा का म्यूजिक तो उसने सुना हुआ था, अब पंजाबी म्यूजिक बनाना बड़ा मुश्किल था। तो सबसे बड़ी चैलेंजिंग मेरी ताल इसलिए थी कि ताल की कहानी अगर देखें तो बहुत ही पतली कहानी है। कहानी में एक लड़का है, वो पहाड़ी इलाके से लड़की के पास जाता है, लड़की को प्यार हो जाता है, उसको वापस छोड़ के आता है, ये लड़की वापस उसके पास जाती है, एक दूसरा आदमी मिलता है, और ये लव ट्रायंगल चलता है, जो बहुत बार देखा, बहुत बार हुआ था। इट वाज नॉट ए ग्रेट स्टोरी, बट वी वांटेड टू मेक ए ग्रेट फिल्म। एंड माई सेड, आई टोल्ड रहमान कि रहमान आई हैव टू मेक दिस फिल्म एज ए, ये फिल्म 2 आदमियों की है, एक डायरेक्टर की और एक म्यूजिक डायरेक्टर। तुम मेरे साथ? तो बोला हाँ जी मैं आपके साथ। और फिर हम लोगों ने म्यूजिक बनाना शुरू किया। उसमें सुखविंदर को बुलाया हमने, पंजाबी को, और आनंद बख्शी थे दूसरे पंजाबी, तीसरा मैं पंजाबी, और सामने हमारा मिलियन मुदरासी। अब सोचो कि उस म्यूजिक के हिसाब से मैंने सीन लिखने शुरू किए और सीन के हिसाब से म्यूजिक लेना शुरू किया।
सीन लिखने के हिसाब से मैंने म्यूजिक लिया और म्यूजिक के हिसाब से सीन लिखे। ये बहुत टफ काम होता है। नहीं तो क्या होता है, पहले हम कहानी लिखते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, सीन लिखते हैं, उसके बाद सब लोग आते हैं। लेकिन ये पैरेलल लेवल पे चल रहा था। बाहर छोड़ो उसको। तो इट वाज ए बिग एक्सपेरिमेंट फॉर मी। और उसका बैकग्राउंड स्कोर भी मैं लिख के सोच के उसके पास जाता था कि ये सीन में इस तरह का बैकग्राउंड चाहिए, इस तरह का म्यूजिक चाहिए, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट चाहिए, अरेंजमेंट चाहिए। उसमें तो कुछ ऐसे शॉट्स भी हैं जो गाना है नहीं सामने अलग बात है, अगर कोई गाना मालूम होगा ताल का, अक्षय खन्ना का, उसके कुछ शॉट्स मैंने स्क्रिप्ट जब शूट का, पिक्चर नहीं शूट हो रही थी, अभी मैंने आइडिया सोचा था, तो बारिश हो रही थी बहुत बॉम्बे में, तो मैंने अपने डिपार्टमेंट बोला कि क्रेन भेजो, कैमरा भेजो, मुझको इसके शॉट्स लेने हैं। और एक मैंने डुप्लीकेट लड़के को बुलाया कि तू दूर से शर्ट पहन के आ जा, डांस करता रहे बारिश में। वो नहीं सामने में अगर आप देखेंगे वो डुप्लीकेट एक शॉट है जो कि पिक्चर शुरू होने से पहले मैंने शूट किया था। मेरे माइंड में गाना था, ये गाने में इस तरह के शॉट्स आएंगे। आप सोचिए, तो ये एक बहुत बड़ा एग्जामिनेशन चैलेंज था एक डायरेक्टर के लिए, एक म्यूजिकल फिल्म बनाना, इसलिए वो फिल्म जो है मेरे लिए चैलेंजिंग थी। धन्यवाद। सर, पीपल आर आस्किंग व्हेन इज योर नेक्स्ट फिल्म? हाँ, ये मुझे मालूम था ये सवाल आने वाला। इतनी फिल्में बनाने के बाद, इतने सीनियर होने के बाद, अब आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि जब भी आप फिल्म बनाएं, वो वैसी ना बनाएं जो आप बना रहे थे, वो वैसी बनाएं जो आपको बनानी चाहिए और नई फिल्म होनी चाहिए। लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि बड़ी फिल्म बनाएं, मैं कहता हूं मैं छोटी फिल्म क्यों ना बनाऊं, मैं इश्यूज के ऊपर पिक्चर क्यों ना बनाऊं। आज का समय में यंगस्टर, व्यूअर्स, ऑडियंस क्या चाहती है। आज मैं सीनियर भी हो गया हूँ, थोड़ा इवॉल्व भी हो गया हूँ थिंकिंग में भी, तो आई विल मेक ए फिल्म, बट आई एम डेफिनेटली जीरो डाउन माय स्टोरी। कहानी जो है मेरी, वो कुछ अच्छा कहना चाहिए अपने देश के लिए और अपने सोसाइटी के लिए, बिकॉज टुडे आई बिकम ए मैच्योर्ड फिल्म मेकर, सो यू कैन नॉट मेक चोली के पीछे टुडे, राइट। वो आपके पास है, जी टीवी में आते रहती है, आप देखते रहिए, मजे लीजिए, लेकिन आने I will make an entertaining film, but with a different issue, with a different subject. That is my next film.